Hello, my dear students. My name is Dr. Vishalika, and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So, today, in continuation with organic chemistry, I'm going to teach you the topic qualitative analysis and quantitative analysis. And bachon, this topic is very, very important not only for a school exam but for your competitives also. So, let us start this topic. So, first, when we start with qualitative analysis, we say that in qualitative analysis, we need to find what element is present. We can find which element is present, and that is qualitative analysis. Suppose you are doing some or preparing some compound in the laboratory, and you want to find out whether the compound you want to prepare is that compound or not. जो आपने बनाया क्या एक्चुअली वही है या नहीं, तो उसके लिए आपको उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी. सो क्वालिटेटिव में हमें ये पता चलता है कि क्या उसमें वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं. ठीक है. सो क्वालिटेटिव टेल्स अस विच एलिमेंट इज प्रेजेंट, व्हाट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वी आर हैविंग इज carbon and hydrogen. So first we can find the detection of element as carbon and hydrogen, and that is done by a method known as Liebig's method. So Liebig's method से हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं. क्या करते हैं इसमें, यू टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालाइज करना चाह रहे हैं, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड कार्बन है, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो आप उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ अच्छे से हीट करें. ऑन हीटिंग क्या होगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद दिस कॉपर ऑक्साइड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 and H2O. In turn, copper oxide is reduced to copper. So this is the reaction takes place. मीन्स हमारे पास जितना भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में था वो सारा CO2 में, और हाइड्रोजन जितना भी था दैट हाइड्रोजन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड इनटू वाटर. तो हाउ डू वी कम टू नो कि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आ जाए और वाटर का टेस्ट आ जाए, इट मीन्स कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें मालूम है टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लाइम वाटर ऐड करते हैं. What is the formula of lime water? Calcium hydroxide. So when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to formation of insoluble precipitate calcium carbonate. So milkiness appears. But if you pass excess of CO2 to it, its milkiness disappears. It becomes calcium bicarbonate which is soluble हो गया तो अच्छे से dissolve हो गया तो milkiness disappear हो गई. So if we get this test, it means carbon dioxide has been formed, and if carbon dioxide has been formed, it means organic compound में carbon present था, तभी तो ये टेस्ट आएगा. ठीक है. अब हम बात करें अगर हाइड्रोजन की. सो हाइड्रोजन मीन्स जितनी भी हाइड्रोजन थी वो सारी वाटर में कन्वर्ट हो गई. सो वाटर के लिए हम सिंपल टेस्ट करें. इफ़ यू टेक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज़ वाइट इन कलर, ठीक है, ऑन मिक्सिंग वाटर टू इट, this copper sulfate changes into CuSO4.5H2O, pentahydrate copper sulfate, which is blue and is known as blue vitriol also. We call it as blue vitriol. So यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन का डिटेक्शन आ गया. तो मैं फिर से बताती हूँ, अगर आपके पास कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपने कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया एट वेरी हाई टेम्परेचर, कार्बन जो भी प्रेजेंट था CO2 में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन जो भी प्रेजेंट था वाटर में कन्वर्ट हुआ, एंड finally how do we come to know CO2? So CO2 when react lime water, it turns milky. Excess of CO2 makes it colorless again because calcium bicarbonate will be formed. Similarly, water when react with copper sulfate, which was white, changes into blue copper sulfate pentahydrate, which we call as blue vitriol. So here we come to know the presence of carbon and hydrogen. अगर ये टेस्ट आते हैं इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं. अब हम आगे बात करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन के लिए. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन. ठीक है. इसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है, एक एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है विच वी कॉल एज लेसांस टेस्ट, एंड एक्सट्रैक्ट इज नोन एज लेसांस एक्सट्रैक्ट और LE. ये क्यों किया जाता है,
पहली बात, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी केमिकल रिएक्शंस हमें करनी है, एंड वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो वेरी स्लो रिएक्शंस. सो लैब में जब इनको डिटेक्ट करना हो, इट इज़ नॉट सो ईजी. वी नीड टू वेट फॉर लॉन्गर वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट. So we need to convert this organic compound into ionic compound by making this Lessans extract. कैसे बनाते हैं पहले मैं बता देती हूँ, और उसके बाद हम इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज़, आप एक इग्निशन ट्यूब में, बहुत छोटी सी पतली सी इग्निशन ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब से भी बहुत स्मॉल साइज़ की होती है. सो इग्निशन ट्यूब में आप सोडियम मेटल लेंगे, उसको हीट करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, मीन्स इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है. और उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें ऐड कर देंगे. ऑन एडिंग फिर से हम इसको हीट करेंगे एंड देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस. देन हम बर्नर के ऊपर एक बीकर लेंगे जिसमें डिस्टिल्ड वाटर फिल करेंगे और उसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग इग्निशन ट्यूब को ऐड कर देंगे, ठीक है. तो इग्निशन ट्यूब जो ऑलरेडी बहुत हीट की हुई थी, इट हैज़ बिकम रेड हॉट. तो जैसे ही आप इस बीकर में इस इग्निशन ट्यूब को, जिसमें ऑलरेडी डिस्टिल्ड वाटर है, इग्निशन ट्यूब डालते हैं, इट ब्रेक्स एंड ऑल द कंटेंट्स कम्स आउट. एंड व्हेन द कंटेंट कम आउट, आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद फिल्टर करना है, and that filtrate is known as LE, Lessans extract. बात समझ में आई? सो ये Lessans extract पहली बात क्यों बनाते हैं? टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू आयनिक वन. उससे क्या होगा, उससे रिएक्शन जो पहले स्लो हो रही थी, नाउ वी नो दैट आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. Now we'll see the chemistry individually for different elements. So suppose आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं. सो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो सोडियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन और नाइट्रोजन, ये तीनों मिलके एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं NaCN, ठीक है. ये NaCN रिएक्ट करता है. किससे रिएक्ट करता है, हम कैसे टेस्ट को पहचानेंगे? तो जो हमारा CN- है, आयनिक कंपाउंड बन चुका है यहाँ से, we allow this ion to react with Fe+2. फेरस सल्फेट डाला आपने, Fe+2 बनाया, इससे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है. ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसमें आपने फेरिक क्लोराइड डाला, Fe+3. जैसे ही आपने ये ऐड किया, वी गेट अ प्रशियन ब्लू कलर ऑफ Fe4 FeCN6. So this Fe4 FeCN6 has been formed and this is Prussian blue in color, ठीक है. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस Fe4 FeCN6 की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है उसमें Iron+3 बाहर और Iron+2 अंदर है. वी कॉल दिस कॉम्प्लेक्स एज Prussian blue in color. बट इन केस आपके पास ऐसा कंपाउंड बने जिसमें Fe+2 बाहर है एंड Fe+3 अंदर है, उसका जो कलर आता है वी कॉल इट एज टर्नबुल्स ब्लू. तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रेशियन ब्लू बन रहा है. सो क्या किया आपने Le लिया. इफ़ दैट Le कंटेन्स नाइट्रोजन इन इट, आपको दो चीज़ें ऐड करनी है, फेरस सॉल्ट, फेरस सल्फेट, एंड आफ्टर दैट फेरिक आयन इन टर्म्स ऑफ फेरिक क्लोराइड. ऑन एडिंग दीज टू वी गेट प्रेशियन ब्लू कलर ऑफ फेरिफेरोसाइनाइड, ठीक है. सो दैट वॉज द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन. नाउ विल टॉक अबाउट हेलोजन. सो फॉर हेलोजन व्हेन वी डू टेस्ट, हेलोजन में कौन कौन से टेस्ट करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो जब हम Le बना रहे हैं एंड इन दैट Le सपोज हेलोजन इज प्रेजेंट, तो कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो बनता है Le में, वो कुछ ऐसा होता है. Now how the reaction takes place? So when we take this X halogen and we allow this to react with silver nitrate, we get a precipitate of silver halide. So once we get the precipitate of silver halide, अब मान लीजिए कि आपके पास जो हेलोजन है अगर वो क्लोरीन है तो प्रेसिपिटेट कौन सा हुआ आपका? AgCl. AgCl कौन सा प्रेसिपिटेट देता है? इट इज़ डर्टी वाइट कलर और इट इज़ soluble in aqueous ammonia. Aqueous ammonia means ammonium hydroxide.
So we get dirty white PPT of AgCl in the case of chlorine and is soluble in ammonium hydroxide. In case your halogen is not chlorine, bromine, we get the precipitate as AgBr, and AgBr is pale yellow, light yellow in color, which is partially soluble in, ये जो precipitate बनेगा partially soluble है aqueous ammonia में. सो यहाँ से कलर से हमें पता चल जाएगा व्हेन यू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ रहेगा तो टर्बिडिटी रहेगी. एंड इफ X इज आयोडीन देन वी गेट द प्रेसिपिटेट एज AgI, एंड फॉर AgI वी गेट डार्क येलो PPT which is completely insoluble in ammonium hydroxide. So we get this dark yellow PPT in the case of AgI. सो जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, फर्स्ट थिंग इज आपके पास Li किस फॉर्म में है, NaX में, विच इज आयनिक कंपाउंड. व्हेन वी ऐड AgNO3 टू दिस Li वी गेट precipitate. If we get dirty white precipitate, it is AgCl. If we get pale yellow which is partially soluble, it is AgBr. And if we get dark yellow precipitate which is insoluble in ammonia, means precipitate में कोई change नहीं होगा, we call it as iodine. So this is the test for halogen. Now we'll talk about sulfur. So suppose आपके पास sulfur है. For sulfur what you will do is, sulfur के लिए जो Le आएगा वो आएगा Na plus sulfur. We have Na2S ionic compound. Le में हमारे पास Na2S होगा. अब ये Na2S के दो टेस्ट हैं. अगर आपने S-2 लेके लेड का सॉल्ट ले लिया, लेड एसीटेट ले लिया सपोज, तो आपके पास लेड सल्फाइड बन जाएगा विच इज़ ब्लैक PPT. सो वी गेट लेड सल्फाइड विच इज़ ब्लैक PPT. तो सल्फर का टेस्ट हो जाएगा. सल्फर का एक और टेस्ट होता है, एंड सल्फर अनदर टेस्ट इज यू टेक दिस सल्फाइड एंड ऐड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO. वी कॉल इट एज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. जैसे ही आपने ये दोनों मिक्स किए हमारे पास आ जाता है वॉयलेट या पर्पल कलर. सो फर्स्ट थिंग इज़ वी गेट वॉयलेट कलर. सेकेंड थिंग इज़ रिएक्शन क्या हुई, तो ये जो सल्फ़र है ये यहाँ पे जुड़ जाता है, तो इसकी दो वैलेंसी भी यहाँ जुड़ जाएंगी. तो इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम पे 2 नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो ये जो सल्फ़र की 2 वैलेंसी जुड़ी, यहाँ पे सोडियम 4 हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ. FeCN5 एंड NO के साथ S जुड़ गया, and we get this as violet or purple color complex which again confirms the presence of sulfur. So हमने हेलोजन पढ़ा. सल्फर में हमारे पास 2 टेस्ट हैं. either you can perform this one, adding lead acetate we get black PPT, or adding sodium nitroprusside we get violet or purple color. So this is the test for sulfur. Now in case if you have any organic compound जिसमें आपके पास सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट हैं, तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो बनता है सोडियम प्लस सल्फर प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन. सो वी हैव NaSCN, सोडियम सल्फोसाइनाइड. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है जी. अब इसमें रिएक्शन क्या होगी, आयनिक बन गया. आयनिक कैसे, Na प्लस SCN माइनस. सो आपने SCN माइनस का रिएक्शन कराया किसके साथ, फेरिक सॉल्ट के साथ. फेरिक क्लोराइड आपने ऐड कर दिया. Fe+3 सॉल्ट लेना है तो फेरिक क्लोराइड द सुटेबल वन. जैसे ही आपने ऐड किया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया SCN होल थ्राइस, एंड इट इज ब्लड रेड इन कलर. ठीक है. सो Li लिया, अगर Li में तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, so if you add ferric ion we get blood red color because of the formation of this complex, and that confirms the presence of sulfur, carbon and nitrogen, all 3 elements present together. Now after this we'll talk about phosphorus. So for phosphorus हम क्या करते हैं, phosphorus में आपने Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड ऐड किया. जैसे ही आपने Na2O2 ऐड किया आपके पास बना फॉस्फेट आयन PO4-3. एडिंग नाइट्रिक एसिड विच एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड. एसिडिक मीडियम हो गया. अब रिएक्शन क्या होगी, मीन्स जितना भी फॉस्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था, द होल फॉस्फोरस हैज़ बीन चेंज्ड इनटू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. अब क्या करें,
अब इस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को लिया और आपने इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड कर दिया. व्हाट इज दिस? अमोनियम molybdate. So when you add ammonium molybdate, then further you add small amount of HNO3, strongly acidic. क्या होगा? ये फॉस्फेट उसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट. अब फॉर्मूला कैसे आएगा? अब आप ये देखिए, ये फॉस्फेट का जो आयन होता है, चार्ज होता है, -3 होता है. ठीक है, तो अमोनियम के साथ फॉस्फेट आएगा और MoO4 जो था MoO3 में हो गया, क्योंकि अब आपके पास 4 × 3 12 हो जाएंगे. तो फॉस्फेट आयन हो गया, अमोनियम 3 हो गया ये, क्योंकि इसका जो चार्ज है और इसका जो चार्ज है इसके बराबर होगा. सो दिस इज़ हाउ वी गेट अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. कलर क्या आता है? कलर आता है कैनरी येलो PPT. सो वी गेट दिस कलर फॉर फास्फोरस. सो फास्फोरस के लिए आपने क्या किया? आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सोडियम पेरोक्साइड डाला, फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रिक एसिड डाला, फॉस्फोरिक एसिड बना. नाउ यू ऐड अमोनियम मॉलिब्डेट टू इट along with nitric acid. We get ammonium phosphomolybdate, which is canary yellow in color. So this is the test for phosphorus. So this is how we have discussed about the qualitative analysis. और qualitative analysis में हमने कौन कौन से elements देखे? We have discussed, we have seen nitrogen, carbon, hydrogen, sulfur, halogens में chlorine, bromine, iodine, and when nitrogen, carbon and sulfur 3 are present together, and last we have seen phosphorus. So 1 2 3 4 5 6 7 8, all these 8 elements we have seen in qualitative analysis. So qualitative analysis से हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से elements present हैं. अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो एज द नेम सजेस्ट क्वांटिटी. सो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, अब हम बात करेंगे कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उनकी क्वांटिटी कितनी है. सो अब हमारा जो आंसर यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा हाउ मच अमाउंट, कितनी परसेंटेज है. क्वालिटेटिव क्या बताता है? कौन सा एलिमेंट है, व्हाट एलिमेंट इज प्रेजेंट, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट. क्वांटिटेटिव टेल्स अस अबाउट हाउ मच एलिमेंट इज प्रेजेंट, हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट. तो ये जो एलिमेंट्स हमने निकाले, सपोज मुझे मालूम है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो कितना % नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चलता है. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड फर्स्ट विल स्टार्ट विथ कार्बन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन, अगेन लीबिग्स मेथड होता है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के लिए. क्या चीज़ ध्यान रखनी है? आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी लेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नोन अमाउंट होगा. सपोज हमने W ग्राम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया. अब क्या होगा? हमें मालूम है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे ही अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो C चेंजेस टू CO2 एंड कॉपर ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस टू कॉपर. ठीक है, इस CO2 की अमाउंट को हमने फाइंड आउट करना है. तो जितनी भी CO2 निकल रही है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन होगा बच्चों तो इसके साथ वाटर भी निकलेगा. अगर हाइड्रोजन, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन दोनों होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ डील करनी पड़ती हैं. सो इन लीबिग्स मेथड व्हाट वी डू इज, ये जो भी गैसेस निकल रही हैं, बिकॉज बहुत हाई टेम्परेचर पे तो वाटर कम्स आउट इन वाटर वेपर फॉर्म, CO2 इज ऑलरेडी इन गैसियस स्टेट. सो वी अलाउ दीज वेपर्स एंड गैसेस टू पास थ्रू some tubes containing KOH and containing calcium chloride. So होता क्या है? KOH का नेचर है कि जितनी भी CO2 है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. CaCl2 का नेचर है जितना भी वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. तो अगर KOH की अमाउंट हमने 10 ग्राम ली है और बाद में ये 12 ग्राम हो गई, तो दोनों को डिफरेंस निकाल के कैन वी गेट द अमाउंट ऑफ CO2. भाई पहले आपने नॉन अमाउंट ले ली, उसमें इसने CO2 एब्जॉर्ब किया तो इसका मास बढ़ गया. तो जो मास बढ़ा, दैट डिफरेंस इन मास इज द मास ऑफ CO2. तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हम CO2 का मास निकाल सकते हैं? मान लीजिए W1 ग्राम आया. सिमिलरली CaCl2 का आपने मास लिया, सपोज आपने 10 ग्राम लिया, बाद में आपके पास 15 ग्राम आ गया, तो डिफरेंस यू गेट द मास ऑफ वाटर.
सो ये कैसे डिफरेंस कैसे पता चलेगा? वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर, उसमें कार्बन कितना परसेंट है और हाइड्रोजन कितना परसेंट है वो हमें यहाँ से पता चलेगा. So once we calculate W1 and W2 gram as mass of carbon dioxide and water respectively, now the next thing is अब हमें इसको अप्लाई करना है कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करें. सो हमें ये मालूम है कि जितना भी CO2 बना उसमें जितना भी कार्बन है वो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन आ गया. सो अगर मैं आपको कहूँ कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता तो 1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन हो गया? 12/44 ग्राम. सो ये अगर W1 कार्बन डाइऑक्साइड आया है तो W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना आपको कार्बन मिलेगा? वेरी सिंपल कैलकुलेशन, अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, हमें पता चल गया इतना कार्बन मिलेगा. तो अब बात आती है कि कार्बन की परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट किया जाए. परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड आउट किया जाए? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज अमाउंट ऑफ कार्बन divided by amount of organic compound taken multiply by 100. तो amount of carbon कितना है? 12/44 into W1 divided by amount of organic compound जो मैंने आपको बताया था W ग्राम है, जो हमें एक फिक्स मान लिया, multiply by 100. So this is the formula that we use to find the percentage of carbon using quantitative analysis, and this method is known as Liebig's method. तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन है ये नहीं पूछी जाती, आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट कीजिए. सो दिस इज़ हाउ यूजिंग दिस फार्मूला, मैंने आपको डिराइव करना भी बता दिया. इट्स वेरी सिंपल. यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रोवाइडेड W एंड W1 आर गिवन टू यू. W क्या है? W इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है. W1 क्या है? W1 इज मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड. ठीक है ना. तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास कार्बन की परसेंटेज कितनी आएगी. तो अगर आपको W और W1 गिवन है क्वेश्चन में, कैन यू इजीली फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए. सिमिलरली अगर आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हमें मालूम है कि वाटर में कितना H है? 2 H एटम्स है. मीन्स 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ H, राइट. सो 1 ग्राम वाटर कितना होगा? 2/18 ग्राम H. ठीक है. वाटर हमने कितना अज्यूम किया था? से W2 ग्राम. सो W2 ग्राम वाटर में कितना H होगा? सो हम बता सकते हैं 2/18 मल्टीप्लाई बाय W2 ग्राम ऑफ H. सो इसका मतलब अगर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन की तो कैसे करेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड ऑब्टेन्ड into W2 divided by mass of organic compound taken multiply by 100. So बिल्कुल जैसे हमने कार्बन के लिए निकाला था, सेम उसी पैटर्न पे we can calculate the percentage of hydrogen in this formula provided W and W2 are known to us. So W तो आपको पता हो गया, mass of organic compound. W2 क्या है? W2 is mass of H2O formed during the reaction. कैसे आया था? CaCl2 का इंक्रीज इन वेट, जितना भी एडिशनल वेट था, राइट. सो आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट द परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. एंड इनके परसेंटेज निकालने के लिए वी हैव अ मेथड, केरियस मेथड. बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के लिए कौन सा मेथड बताया था? कार्बन और हाइड्रोजन के लिए हमारे पास था लीबिग मेथड. And now for these elements we have Carius method. Carius method पहले हम हेलोजन की बात करते हैं. So first case let us take percentage of halogen. क्या करते हैं? आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, आपने उसमें AgNO3 ऐड किया. जैसे ही AgNO3 ऐड किया रिएक्शन हुई AgCl. ठीक है. इसमें एक्वस अमोनिया डाला तो क्या हुआ? प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गया. ठीक है. यहाँ हम Li लेके कर सकते हैं. अब इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करें? सो अगर हमने हेलोजन में क्लोरीन लिया है तो AgCl का जो मास हुआ 108 + 35.5 मीन्स 143.5 इसका मोलर मास हो गया. सो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. सपोज वी हैव 143.5 ग्राम AgCl. इसमें कितना Cl है? इट कंटेन्स 35.5 ग्राम Cl, राइट.
सो 1 ग्राम में कितना हुआ 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5। अगर मान लीजिए इसकी अमाउंट हमने ले ली x ग्राम, ठीक है, सो हमारे पास x ग्राम में कितना हुआ, सो हम लिख सकते हैं 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू एक्स ग्राम ऑफ Cl। अब क्या आप यहाँ से परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं? सो अब परसेंटेज क्या आएगी, सो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो अमाउंट ऑफ क्लोरीन 35.5 अपॉन 143.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय W ग्राम इज ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास परसेंटेज आ गई क्लोरीन की। ऐसे ही अगर आप ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन में AgBr बनेगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन में डायरेक्टली आपको बता सकती हूँ अगर आपको ब्रोमीन का एटॉमिक मास याद है। सो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80 प्लस 108 सिल्वर का, तो इट बिकम्स 188 मल्टीप्लाई बाय, मान लीजिए x ग्राम AgBr है इस समय, पहले x ग्राम क्या था AgCl का मास, नाउ x ग्राम इज AgBr डिवाइडेड बाय 100 W इंटू 100। सो क्या ये हमारी Br की परसेंटेज हो गई? कैन वी कॉल इट एज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दिस केस? सिमिलरली इफ आई से हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोडीन, अब आप कहेंगे तो बहुत सिंपल है, आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है, 108 इसमें ऐड कर लें, इट बिकम्स 235 मल्टीप्लाई बाय एक्स, व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज परसेंटेज अमाउंट ऑफ AgI divided by W into 100. So this is how the percentage of iodine can be calculated. So इस तरह से आपने इंडिविजुअली इन सब की परसेंटेज का एक फॉर्मूला बना लिया। So this is how we can calculate for halogen. Now बात आती है कि अगर आपको सल्फर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। So second case is for sulfur. अगर आपको सल्फ़र फाइंड आउट करना है तो इसी केरियस मेथड में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, आज में आपने उसमें Na2O2 या HNO3 कॉन्सनट्रेटेड फ्यूमिंग HNO3 ऐड कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अगर सल्फ़र प्रेजेंट है तो ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस H2SO4 में हम फर्दर BaCl2 डालेंगे, मीन्स जितना भी सल्फ़र है वो यहाँ आ गया, एंड ऑन एडिंग BaCl2 वी गेट BaSO4, यानी जितना भी सल्फ़र यहाँ था ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो सारा यहाँ आ गया। और ये हमें मालूम है BaSO4 वाइट PPT होता है। इस PPT को हमने लिया, इसको ड्राई किया, इसका वेट ले लिया, मान लीजिए x ग्राम आ रहा है। अब क्या करें, अब तो परसेंटेज निकालना आपको आ ही गया है, तो लेट मी राइट द फॉर्मूला डायरेक्टली। परसेंटेज ऑफ सल्फ़र इज एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र, इसमें सल्फ़र कितना है 32, बेरियम सल्फेट का मोलर मास होता है 233 इंटू कितने ग्राम बेरियम सल्फेट x डिवाइडेड बाय W क्या है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी गेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर। दिस इज हाउ वी गेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर। सिंपल है। तो आपने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें या तो ये या ये डाल दिया, परऑक्साइड या फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, द सल्फर कन्वर्ट्स इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, add barium chloride and whole sulfur has been changed into barium sulfate, इसका नोन अमाउंट लिया white PPT और इससे परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए क्या करेंगे, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, आपने उसमें MgSO4 ऐड किया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया डाला, जिससे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बन गया। इसको हीट करने से ये हमारे पास हो गया Mg2P2O7, यानी जितना भी फॉस्फोरस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, द होल फॉस्फोरस हैज़ कम in this format, in this precipitate, and let us write the amount of this compound as x gram. अब आपसे पूछूं परसेंटेज निकालो तो आप कहेंगे तो बहुत सिंपल है, बट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ 2 फॉस्फोरस हैं, सो हम फॉस्फोरस 31 इंटू 2 62 लेंगे, ठीक है। एंड Mg2P2O7 का जो मोलर मास होता है वो होता है 222 इंटू ये एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय W ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दिस इज हाउ वी गेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। सो इस तरह से आप फॉस्फोरस की परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर फॉस्फोरस लेट अस टॉक अबाउट द परसेंटेज डिटेक्शन फॉर नाइट्रोजन। So for nitrogen again we are having 2 ways. First is we call as Dumas method.
to calculate the percentage of nitrogen we have two ways. One is Dumas method. Dumas method में क्या होता है, आपके सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. सो मान लीजिए आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही, डेफिनेटली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, से विद दिस नंबर दे आर प्रेजेंट. तो हम उसको कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे. कॉपर ऑक्साइड की जो वैल्यू होगी वो कुछ इतनी होगी. अगर हम बैलेंस इक्वेशन लिखें तो हमारे पास CO2 बनेगा. डेफिनेटली जो कार्बन है ऑक्साइड बना देगा, जो वाटर है वो हमारा H2O बना देगा. एंड साथ में हमारे पास जितना नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विथ सम अमाउंट ऑफ कॉपर एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन इज दिस वन. तो बेसिकली हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है. तो जो भी नाइट्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था वो नाइट्रोजन सारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. उसके अलावा हो सकता है कि ऑक्साइड्स अगर हों तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन जाए. तो अगर कुछ नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स भी बन रही हैं उसको भी अगर हम कॉपर ऑक्साइड से अच्छे से हीट करें तो भी नाइट्रोजन बन जाता है. इट मीन्स अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाइट्रोजन ओनली. अब क्या करें, अब बस इस नाइट्रोजन के अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे, उससे परसेंटेज निकालेंगे. तो कैसे फाइंड आउट करें, तो मान लीजिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P माइनस P1 अपॉन T1 इंटू V1. अगर आपको याद हो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 होता. अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया P माइनस P1. तो जो नाइट्रोजन कलेक्ट होगी बच्चों उसके साथ सिर्फ नाइट्रोजन नहीं वाटर की वेपर्स भी होंगी. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड को आपने KOH के साथ एब्जॉर्ब कर लिया, पर एट द सेम टाइम नाइट्रोजन के साथ आपके वाटर वेपर्स भी होंगी. तो आपको वाटर वेपर के प्रेशर से नाइट्रोजन के अमाउंट को जो भी टोटल प्रेशर है उससे माइनस करना होगा. सो इसका मतलब क्या है, P क्या है, तो इसको हम स्टडी करते हैं. तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो ये आया. सो अगर हम बात करें P क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो P है वो हमारा है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस. मॉइस्ट गैस मीन्स इसमें वाटर भी है और इसमें नाइट्रोजन भी है, दोनों का प्रेशर, मतलब ये टोटल प्रेशर आ गया. जो कंटेनर पे P टोटल आ रहा है उसे हमने P लिखा. फिर P1 क्या है, P1 इज प्रेशर ऑफ वाटर जिसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन. प्रेशर ऑफ वाटर जिसे हमने कहा एक्वस टेंशन ऑफ वाटर वेपर. ठीक है ना. जब वाटर वेपर ऊपर जाएंगी तो इनके भी कुछ प्रेशर होता है तो उसे हम एक्वस टेंशन कहते हैं. तो P माइनस P1 करें यानी टोटल प्रेशर में से वाटर का माइनस कर दिया. तो क्या बना हमारे पास, तो हमारे पास आया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. P माइनस P1 क्या बन गया, P माइनस P1 आ गया हमारा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस. ठीक है जी. अब बात आती है V1 क्या है. सो V1 है हमारा वॉल्यूम, कब, एट टेम्परेचर T1. ठीक है जी. फिर आते हैं P2. P2 क्या है हमारा प्रेशर, कब, एट STP, प्रेशर ऑफ गैस एट STP. यानी कितना लेंगे, अगर ATM में है तो 1 ATM और mmHg में है तो 760 mmHg लेंगे. ठीक है. V2 क्या है, V2 जैसे हमें फाइंड आउट करना है ml में ले लीजिए. एंड T2 क्या है, T2 हमारा टेम्परेचर है, कब, STP पे, और हम जानते हैं STP पे हम कितना लेंगे 273 केल्विन. सो हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं. P और P माइनस P1 जो है ये हमने एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट किया, वॉल्यूम हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसको यूज़ करके नाइट्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे. सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करें तो हमें मालूम है 28/22,400 ml. 22,400 ml में नाइट्रोजन का अमाउंट कितना होता है, 28 ग्राम. बस उसी को हमने बना लिया. वॉल्यूम यहाँ कौन सा लेंगे, V2 जो हमने यहाँ इस फॉर्मूले से, जो पीछे फॉर्मूला लिखा है ना, उससे कैलकुलेट किया. P माइनस P1 V1 अपॉन T1 इज गोस टू P2 V2 अपॉन T2. तो ये V2 हमने कैलकुलेट कर लिया. डिवाइडेड बाय W. व्हाट इज W, ये आप लोगों को सबको पता है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस इज हाउ वी गेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. सो वी कॉल दिस मेथड एज ड्यूमास मेथड. ठीक है. अब आता है नाइट्रोजन का सेकेंड मेथड. सो नाइट्रोजन का सेकेंड मेथड है हमारा Gell-Tal's मेथड. दैट इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन.
फर्स्ट मेथड कौन सा था? फर्स्ट मेथड था ड्यूमास मेथड। अब ये जो जेल्डाल्स मेथड है ये कुछ कंपाउंड्स नहीं देते हैं, जैसे नाइट्रो ये कंपाउंड नहीं देगा, एजो नहीं देगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर कोई रिंग है, जैसे आपके पास पिरिडीन है, कोई रिंग है, तो ये भी ये कंपाउंड्स इस टेस्ट को या इस मेथड को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं मैं बताती हूँ आपको। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं इस मेथड में क्या होता है उससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाई दीज कंपाउंड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। सो व्हेन यू टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट, तो क्या होता है ये बना देता है अमोनियम सल्फेट, हमारे पास बन जाता है अमोनियम सल्फेट। तो क्योंकि ये कंपाउंड्स कार्बन से कनेक्टेड नहीं होते तो इनमें अमोनियम सल्फेट बनाना मुश्किल होता है, इसलिए ये कंपाउंड्स रिएक्ट नहीं करते। अच्छा जी, चलिए बाकी कंपाउंड्स इनमें नाइट्रोजन है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट डाला, अमोनियम सल्फेट बना। अब क्या करें, अब इस अमोनियम सल्फेट में हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें मिल जाएगी अमोनिया। बस इस अमोनिया की ही अमाउंट को हमें फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ को। तो कैसे फाइंड आउट करें, हम इस अमोनिया को लेके H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, जितना H2SO4 यूज़ हुआ इसका मतलब इतना अमोनिया बना है। तो जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास फिर से बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अमोनिया कितना बना है, कैसे, अमाउंट ऑफ H2SO4 से। तो ये सारी कैलकुलेशन करके जो अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला आता है वो आता है 1.4 डिवाइडेड बाय W, W इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, इंटू N इंटू V ml। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई, नॉर्मेलिटी, एंड V हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो जैसे आपके पास नॉर्मेलिटी दी हुई है एसिड की, वो हो गई N, N क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, कितना एसिड चाहिए होगा। फिर V क्या है, V भी वॉल्यूम ऑफ एसिड है, क्योंकि जितना एसिड कंज्यूम हुआ उसी से तो हमें पता चलेगा कितना अमोनिया रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना, तो एक तरह से अमोनिया जितना भी प्रोड्यूस हुआ, हमने एक्सेस ऑफ H2SO4 डाला तो उसकी N और V हमें पता होगी, यहाँ पुट करेंगे एंड इसमें 100 लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला डायरेक्टली बन गया। सो वी कॉल दिस एज जेल्डाल्स मेथड, और इसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। So this is how we have calculated or discussed about the quantitative analysis for different elements. So इस वीडियो में हमने qualitative और quantitative analysis पूरा स्टडी किया। So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।